ویلکم بیک۔ پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والوں کے شناختی کارڈ، موبائل سم اور پاسپورٹ بلاک کیے جائیں گے۔ جو ڈپٹی کمشنر ناکام ہوا تو اسے ہٹا دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا پولیو اجلاس میں اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں انسداد پولیو کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر صحت، چیف سیکرٹری سندھ، آئی جی پولیس، میئر کراچی، کمشنر کراچی، سیکرٹری ٹو سی ایم، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، سینئر بورڈ آف ریونیو، سیکرٹری صحت، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور کوارڈینیٹر ای او سی اور ڈائریکٹر پی ایچ آئی ڈی جی ہیلتھ اور دیگر اجلاس میں شریک تھے۔ اجلاس میں کراچی ڈویژن کے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنر موجود تھے۔ حیدرآباد، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، سکھر، لاڑکانہ اور کے کمشنر اور ڈی آئی جیز اور ڈی سیز ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اجلاس میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ بھرپور کوششوں کے باوجود پولیو کیسز رپورٹ ہونا آج افسوسناک ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ سنجیدگی سے کام کرے۔ پولیو مہم میں کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے باقاعدہ ضلع انتظامیہ کو انتباہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو افسر کارکردگی نہیں دکھائے گا وہ میری ٹیم کا حصہ نہیں رہے گا، یعنی کہ تمام ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کو یہ آخری وارننگ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ میں کچھ محکمہ صحت اور انتظامیہ کے افسران پہلے ہی بھی فارغ کر چکا ہوں۔ اب انسداد پولیو میں مزید غفلت پر متعلق افسران کو بھی گھر جانا ہوگا۔ پولیو کا خاتمہ قومی ذمہ داری ہے، کوتاہی ناقابل برداشت ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے مزید کہا کہ آج یہ اجلاس طلب کرنے کا مقصد نئے جذبے سے یونین کونسل کی سطح پر پولیو کی مہم چلانی ہے، اور گزشتہ ہفتے پولیو کے مزید 2 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جس سے صوبے میں مجموعی تعداد 9 ہو چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ملک بھر میں 29 پولیو کے کیسز میں سے 9 سندھ، 18 خیبر پختونخوا، پنجاب اور آزاد جموں کشمیر میں ایک پولیو کا مریض شامل ہے، جو سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ مجھے پولیو کے خاتمے کے حوالے سے کوئی معمول کی پریزنٹیشن بالکل نہیں چاہیے۔ پولیو کے خاتمے کا محکمہ صحت سے مکمل پلان چاہیے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیجو اور کوارڈینیٹر ای سی او ارشاد سوڈر نے بریفنگ دی۔ رپورٹ ہونے والے نئے پولیو کیسز میں 2 ٹھٹھا، 2 بتین، 1 مٹھی، 1 عمرکوٹ، 1 حیدرآباد، 1 قمبر اور 1 لاڑکانہ سے ہے۔ زیادہ تر کیسز بچوں کو پولیو کے بچاؤ کے حفاظتی قطرے سے انکار یا بچے کے گھر میں نہ ہونے کے باعث رونما ہوتے ہیں۔ کراچی اور ملیر کے پولیو کیسز انکار کی وجہ سے آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو اس موقع پر آگاہی جہاں فراہم کی گئی، وہیں پر وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی کہ سب انکار کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ پولیو کے حفاظتی قطرے پلانے سے انکار کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ کیس کیسے والدین ہیں یا اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر کے ان کو ساری عمر کے لیے معذور کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ یہ پولیو کے قطرے سے انکار نہ صرف لوگ اپنے بچوں کو معذور کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، بلکہ دوسرے بچوں کو بھی وائرس دیتے ہیں۔ انتظامی کارروائی کر کے انکار کو ختم کیا جائے اور مجھے رپورٹ پیش کریں۔ 13 اکتوبر سے انسداد پولیو مہم کو جنگی بنیادوں پر چلایا جائے۔ پوری انتظامیہ، ضلع انتظامیہ خصوصاً ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ٹرننگ مشین سے باہر ہوں گے، یہ بتا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری انتظامیہ انسداد پولیو مہم کو کامیاب کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ کراچی میں پولیو کے ماحولیاتی نمونوں کے نتائج مثبت آئے ہیں۔ اجلاس میں یہ آگاہی فراہم کی گئی۔ اس وقت شرقی میں سراب کوٹ، مچھر کالونی، چکور نالہ اور راشد مناز سے پولیو وائرس موجود ہے۔ غربی میں خمیسو کوٹ، اورنگی کماڑی میں محمد خان کالونی میں پولیو وائرس ہے۔ ملیر میں بختاور کوٹ، کورنگی میں کورنگی نالہ، وسطی میں حاجی مرید کوٹ اور جنوبی میں ہجرت کالونی اور منظور کالونی میں پولیو وائرس موجود ہے۔ عوام کو آگے آنا چاہیے تاکہ ان کے بچوں اور ان کے پڑوسیوں کے بچوں کو پولیو سے پاک کیا جائے۔ ستمبر کی انسداد پولیو مہم میں 21,06,664 بچے حفاظتی قطرے پینے سے رہ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو آگاہی فراہم کی گئی۔ پولیو قطرے نہ پینے والے بچوں میں گھروں میں آج موجود نہیں تھے، اس وجہ سے اور تقریباً 35,522 لوگوں نے والدین نے انکار کیا۔ ریفیوجن کنفیوژن کمیٹی کو متحرک کر کے تمام ریفیول کیسز ختم کر کے اس کو کریں، وزیر اعلیٰ سندھ نے ہدایت کی۔
पोलियो के हिफाजती खतरे से इनकार करने वालों को मोबाइल सिम ब्लॉक और शनाख्ती कार्ड मुअत्तल करने पर गौर कर रहा हूँ। ये बात वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कही। हिफाजती खतरे के इनकारियों के मोबाइल सिम, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का प्लान बना कर दें। वज़ीर आला सिंध ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो ड्रॉप रिफ्यूजल सेल सीएम हाउस में कायम कर दिया है। महकमा सेहत पोलियो के हिफाजती खतरे से इनकार करने वालों की तफसीलात यूनियन काउंसिल के हिसाब से बताए ताकि कार्रवाई की जाए। इनकार करने वालों के पास मुंतखब नुमाइंदे डिप्टी कमिश्नर एसएसपी जाएगा और इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाएगा। वज़ीर आला ने बाकायदा हुक्म जारी किया। जो नए केसेस दही इलाकों में आए हैं वो ज़्यादातर अजला के सरहदी एरिया से रिपोर्ट हुए हैं, वज़ीर आला सिंध का कहना था। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि इस मरतबा तमाम खाना बदोशों खानदानों को भी पोलियो वैक्सीन पिलाई जाए। हैदराबाद डिवीजन में और मीरपुर खास डिवीजन में खाना बदोश खानदान एक इलाके से दूसरे इलाके हिजरत करते रहते हैं, इस पर तवज्जो दी जाए। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। मंगोपीर टाउन में सिंध हुकूमत और मेयर कराची के ताउन से अवामी खिदमात के काम जारी है। वफाकी हुकूमत की तामीर होने वाली शाहरा से मुतमईन नहीं हूँ, चेयरमैन नवाज अली ब्रोही ने मेट्रो वन न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। आज मैं आया मंगोपीर टाउन। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पर अजीब हालत थी और आप मेरे पीछे देख रहे हो कि ये लीकेजेस है, पानी की है, ये सीवरेज की है, क्या है, गाड़ियाँ कैसे जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। और उसके साथ साथ अगर वो आपने दिखा दिया तो एक चीज़ ये है कि यहाँ पर ढक्कन जो सीवरेज के मेन होल्स के लगे हुए हैं ये फाइबर के लग रहे हैं मुझे। ये है क्या कहानी? ये खालिस लोहा है या सीमेंट है, ये क्या है? मेरे साथ खड़े हैं चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही, वाइस चेयरमैन राना मोहम्मद आरिफ और दीगर इनके कुलीग, ये खड़े हुए। इनसे भाई क्या काम करा रहे हो, क्या खाक काम हो रहा है? ये देख लो पानी बह रहा है सड़क के ऊपर, यार टूटी हुई सड़क है। इसमें सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आप मंगोपीर तशरीफ लाए। आज छुट्टी का दिन भी है, हम आपको फील्ड में नज़र आ रहे हैं। ये तो एक सामने आप देख रहे हैं, ये जो लीकेज है ये वाटर बोर्ड की लीकेज है। इसको जो है हमने वाटर बोर्ड को बाहर कहा है, कल का उन्होंने मंडे का कहा है कि मंडे से हम इसको जो है, हालांकि इसकी मैंने खुदाई करके जाहिर कर दी है। वाटर बोर्ड की 24 राई की लाइन है जो औरंगियों को वाटर सप्लाई देती है, वो उसकी लीकेज है। इसकी मेन लीक होने की वजह ये थी कि यहाँ सामने आपको नाला नज़र आ रहा होगा, इस नाले को आगे से बंद किया गया था, जिसका मैंने जो है ना कमिश्नर साहब को और डिप्टी कमिश्नर साहब को भी ऑन द स्पॉट जो है ना मैंने रिपोर्ट दिया और उन्होंने एक्शन लिया और ये नाले का जो है जो गेट लगा हुआ है वो अंदर से खुलवाया। उसकी वजह से हमारे यहाँ सीवरेज की लाइनें बैठ गई, जो कि ऑन गोइंग स्कीम है KDA की, ये इज्तिमा रोड शाहरा रमज़ान बिरोई, जिस पे जो है ये काम वो अभी फाइनल नहीं है। एक तो ये ज़मीन बैठ गई, लाइनें बैठ गई, एक ये बड़ा मसला हो गया। उसके साथ साथ जो है फिर हमने यहाँ पे जो मेन इशू है, जो पब्लिक की डिमांड देखते हुए, मजबूरी परेशानी देखते हुए, हमने एक यहाँ पे राणा साहब से मशवरा करके लाहौर से हमने फाइबर के रिंग और ढक्कन मंगाए। जिस तरह आप ये देख रहे हो ये पड़े हुए, ये जो है हमारे लोकल बनते हैं, लेकिन हमने ये लाहौर से स्पेशल मंगाया क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वजनी गाड़ी हो अगर इसके ऊपर जाती है तो अभी आप इसको शायद आपने भी तजुर्बा किया होगा, अभी ट्रक गुजरे इसके ऊपर से, ये ना टूटती है ना बैठती है। तो ये एक मजबूत एक चीज़ है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन शाहरा है हमारे, या जहाँ से गाड़ियाँ मुड़ती हैं उसके ऊपर जो सीवरेज का जो जिस तरह मेन होल्स आते हैं तो उस पर हम ये लगवा रहे हैं। राणा साहब, इसमें तो चोरी का मामला खत्म हो गया। वो हिरोइनची जैसे मैं आया अजीज़ार पोड़िया लेने के लिए, मैंने बोला ढकना निकालो, लोहारिया तोड़ो, बेचो, वो मसला भी हल हो गया? जी, सबसे बड़ा मसला तो हमारे लिए यही था कि सीमेंट के ढक्कनों और इनसे पोल्ट्री जो थे मंशियात जो के आदी थे वो इनको बेचते थे। अब उससे ये मसला हल हो गया कि ना इसको कोई कबाड़िया खरीदेगा और ना ही ये जलने के काबिल है और ना ये बिकने के, तो इससे हमें फायदा। जबरदस्त। और कोई काम चल रहा है या यही है कि भाई मुझे यही नजर आएगा टूटी फूटी सड़कें? देखिए, हम तो हमारी मुसलसल कोशिश है, हर दरवाज़ा हम खटखटाते हैं, चाहे वो KMC हो, चाहे वो KDA हो, चाहे वो जो है वाटर बोर्ड हो। इस वक्त वाटर बोर्ड का एक बड़ा स्कीम चल रहा है जो 1500 फीट और तकरीबन 40 डाई जो है डीप पे उनकी 30 डाई की लेन है और 40 जो है डीप पे उनकी ज़मीन में जिस पे काम चल रहा है। जहाँ सीवरेज का एक बड़ा मसला बना हुआ है, ख़ास तौर पर वहाँ ट्रैफिक का भी बड़ा मसला बना हुआ है, वो हम पे कराएंगे। ये साइम आरबीन विलास मंगोपीर टाउन UC2 में। बट डन हो गया भाई। इन्होंने कहा है कि एक लाइन चल रही है जो 40 फुट गहरी है और इतनी लंबी है, ये वो। चलो आज चेयरमैन मंगोपीर टाउन का कड़ा इम्तिहान, या तो ये घर छोड़ के आएंगे या मैं इनको आज घर छोड़ के आऊँगा। चलो भाई लेके चलो मुझे भाई साइमा, चलते हैं भाई साइमा, चलते हैं, देखते हैं वो कौन सी लाइन डल रही है जिसके बारे में ये हमें बता रहे हैं। आइए आपको भी लेके चलते हैं।
जैसे कि अब दोबारा मैं आपको लेके आया हूँ साइमा का, ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो है इस तरफ मेरे उल्टे हाथ पर न्यू कराची टाउन है और इस हाथ पर मांगो पीर टाउन है। बीच की ये बॉर्डर पे जो ये लाइन बैठी थी उसके बारे में इन्होंने कहा था। तो अब मैं आ गया हूँ इधर और इनसे पूछता हूँ कि आपने कहा था कि आप आपको दिखाएंगे, क्या सूरत हाल है, अब आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई चेयरमैन साहब आ जाइए ज़रा, मुझे बताइएगा। आप मुझे लेके आए थे, आपने कहा था साइमा पे 40 फुट गहरी है, ये वो वाकई है तो खंदक, ये क्या सुरंग वुरंग बना रहे हो, क्या कर रहे हो, अंडरपास बना रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया। ये हमारी तकरीबन ये मंगो पीर, अलगाजी, विलास, साइमा और उसके साथ जो है याकूब शाह बस्ती, फिर मुला जाम गोट, अहमद टाउन और मून सिटी, फेज़ 2, इस तरफ के इलाकों का सारा जो है ना, एक यहाँ से हमारा एक लेन पहले 24 डाई का था, आगे 36 का होता है, फिर उससे आगे बढ़ते बढ़ते ये 72 लेन जाके लियारी नदी में गिरता है। अल्लाह वाली के मकाम से एक डैमेज लेन बैठ गई थी जो 72 इंच की है, और ये लेन बैठ गई थी, ये थी 24 इंच की। तो हमने मेयर कराची साहब से गुजारिश की, MD वाटर बोर्ड से गुजारिश की कि ये लैंड बैठ गई है और पूरा इलाका में पीछे पानी, और ऊपर से बरसात के ऊपर बरसात, और अल्लाह की रहमत सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर 2 से 3 दफ़ा जो बारिशें हुई वो सबसे ज़्यादा बारिशें सरजानी में हुई, मंगो पीर में हुई। तो ये एक बड़ा हमारे लिए इशू बन गया था। इसके सामने एक ट्रेंच खोदा हुआ है, ये अपनी मदद आपके तहत ट्रेंच खोद के हमने पानी को डाइवर्ट किया, उस तरफ चल रहा है वो पानी, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह हम उसको चला रहे हैं, किस तरह हम सेंट्रल को भी बचा रहे हैं और अपने मंगो पीर को भी बचा रहे हैं। और उसके साथ साथ मेयर कराची साहब और CEO वाटर साहब, MD वाटर साहब ने जो हमारे ऊपर मेहरबानी की। इसमें एक चीज़ की आप इजाफा मैं करूं, इसमें साइमा अर्बन विलास जो है उनसे हमने रब्ता किया, कोऑर्डिनेशन कराया, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है उस पर हम ये काम कर रहे हैं। इसको 24 से बढ़ा के 30 डाई का कर रहे हैं, और लेकिन इसकी डीप बहुत ज़्यादा है। और ये जो कॉन्ट्रेक्टर है वो बड़ा टेक्निकल बंदा है, वो एक एक पैम जो है 2 मशीन लगा के एक एक पैम डाल रहा है। अगर वो नीचे मिट्टी बालू है, जैसे ही जो है ना यहाँ खुदाई शुरू करते हैं तो वो मिट्टी गिर जाती है। तो टेक्निकल तरीके से काम कर रहा है। मैं भी बड़ा डिस्टर्ब हूँ इस काम से कि खुदा ना खास्ता कोई वाक़या ना हो जाए, क्योंकि 2 गाड़ियाँ तो पहले यहाँ धंस चुकी थी। तो उसको बिल्कुल हम चेंज कर रहे हैं, जो 24 डाई को, उसका दूसरा हम उसको डाइवर्जन दे रहे हैं 1500 फीट 30 डाई की लेन जो है वो तकरीबन चल रही है। लेकिन काम स्लो होने की वजह ये है कि जो डीप है और बालू मिट्टी है, नीचे पानी है, सेम है, तो उसकी वजह से ये कॉन्ट्रेक्टर भी डिस्टर्ब है, हम भी डिस्टर्ब हैं, और साइमा अर्बन विलास वाले डिस्टर्ब हैं। क्योंकि आप कैमरा मैंने अगर देखा है, आप सामने देखा है 22 व्हीलर गाड़ी इस वक्त जा रही है सामने, ये 22 व्हीलर गाड़ी जा रही है। ये गाड़ियाँ जब टर्न नहीं ले सकती वो दूसरी वो है। तो ये वाटर सप्लाई जो हमारा करस्प्लान एडेंट है वहाँ से आते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक शाम के टाइम या सुबह के टाइम लोगों को परेशान करते हैं। मैंने DIG ट्रैफिक साहब से फ़ोन पे बात भी की है, उसको लेटर भी मैंने भेजा है, इरसाल किया है कि भाई ये हमारा मसला है, ये गाड़ियों को कुछ दिन के लिए यहाँ से डाइवर्जन दिया जाए या रोका जाए, ताकि यहाँ के आने जाने वाले, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होता है, हॉस्पिटल है, बच्चे हैं, स्कूल है, तो उस सिलसिले में हमारी कोई खातिर का मदद नहीं की जा रही है। तो बहरहाल हम अपनी कोशिश करते हैं, हर दरवाजे पर जाते हैं, हर इदारे के पास जाते हैं, कोई ना कोई काम लेके आते हैं। इसी तरह आगे जो है KDA हमारे जो 72 इंच की लेन है वो भी बैठी हुई है काफ़ी अरसे से। गुज़श्ता 3 साल से मैं कह रहा हूँ कि यूसुफ गोड पर डूबेगा। आपका सरजानी का जो 2-3 बेल्ट हैं जो प्याले नुमा है, पहाड़ियों का पानी वहाँ आता है, उसमें हमें परेशानी हुई। उसकी वजह यही है कि 72 की लेन बैठी हुई है, यहाँ से ये लेन बैठी हुई है। तो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं हर इदारे से कि हम अपने इलाके में बेहतरी ला सकें। अरे भाई ये तो चेयरमैन बता रहा है कि वो ले आता है काम, लेकिन ये KDA का क्या करोगे आप? 72 की लाइन बैठी हुई है, ये अगर बन भी गई तो फिर फंसोगे। जी, जैसे चेयरमैन साहब ने बताया कि 3 साल से वो इसी काम के सिलसिले में जा भी रहे हैं, और उसकी कुछ इम्प्रूवमेंट भी हुई है कि चेयरमैन साहब के आने जाने से और शोर करने से और हर दरवाज़ा खटखटाने की वजह से अब एक छोटा सा पैसेज रह गया है, जिस पे अभी हम दोबारा चेयरमैन साहब से गुजारिश भी करेंगे, और आपके चैनल के तवज्जुह से भी हम आला हुकाम से गुजारिश करेंगे कि उस 72 की लाइन को KDA जल्द अज जल्द पूरा कर दे। तो मेहरबानी होगी। इधर आओ मियाँ, इधर आओ जरा, इधर आओ, तुम बहुत ऊंची फिल्म हो। ये बताओ ये मगरमच्छ की कहानी क्या है? तो मगरमच्छ को तुम गोश्त खिलाते हो, ये कोई टोटका है क्या? नासिर शाह के पास जाते हो सोलर ले आते हो, मेयर के पास जाते हो कोई सड़क ले आते हो, ये सेवरेज का सिस्टम ले आए, वाटर बोर्ड जाते हो जो किसी को कुछ नहीं देता वो तुम्हें दे देता है, क्लिनिक वाले के पास जाते हो वो तो, ये मगरमच्छ वाली कहानी क्या है? देखिए बात ये 1895 में मेरा परदादा यहाँ फौत हुआ है, सन 1895 में। तो मंगो पीर का मैं लोकल हूँ, मंगो पीर की एक एक चीज़ से मैं वाकिफ़ हूँ, और मीटिंगों में मुझसे पूछा जाता है कि ये सब चीज़ें आप कहाँ से लाते हो? बचपन से बड़े हो गए, बाल यहाँ सफ़ेद हो गए, तो हमें ये सब चीज़ों का अंदाज़ा है।
ये हमारा जुडिशन है, यहाँ हमारी रिहाइश है। अच्छा, ये मगरमच्छों की एक बहुत पुरानी कहानी है, तो उसमें जो है हम कोई खिदमत नहीं कर सकते हैं, अल्लाह की ज़ात है, वो खिला सकता है। कोशिश इंसान की होती है, मुख्तलिफ इदारे भी यहाँ पे आते हैं और वो हफ्तेवार जो है ना वहाँ जानवर काटते हैं, गाय काटते हैं, इनको खुराक देते हैं। अल्लाह ही पूरा करता है, ये 200-250 मगरमच्छों का कोई पूरा नहीं कर सकता। ये थे चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई, और ये थे हमारे वाइस चेयरमैन आरिफ राना, उनकी कुलिक भी खड़े हुए हैं। बताने का मकसद ये था कि ये धूल मट्टी झाड़ियों में मिला था ये टाउन मंगो पीर टाउन। 16 यूनियन काउंसिल में पीएस पार्टी ने बड़ा जुल्म किया भाई, हमारे अपने ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर, काउंसलर पे, काबिल एहतराम खवातीन काउंसलर पर उनको ऐसा टास्क दे दिया कि रहना। जी 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 जी। देखिए, पीपल्स पार्टी ने जुल्म नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने हमारे ऊपर एहसान किया है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने हमारे ऊपर ये एहसान किया कि पहले ये डीएमसी में हुआ करते थे या दूसरे डिपार्टमेंट में जो भी हुआ करते थे, तो यहाँ खातिर रखा काम नहीं हुआ। आज बाबा साहब पीपल्स पार्टी ने जो है, बिलावल साहब ने हमें मंगो पीर टाउन का तोहफा दिया और हमारी जिम्मेदारी लगाई। उस अपनी जिम्मेदारी को हम निभाते हुए ना हफ्ता देखते हैं, ना इतवार देखते हैं, ना छुट्टी देखते हैं, ना रेन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना दिन देखते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज भी सैटरडे हफ्ते का दिन है। लेकिन जो मैं बात कर रहा था वो ये थी, यही जो बात कर रहे हैं कि जो जुल्म किया है कि इसको 16 टाउन दे दिए और उसके बाद झाड़ी और उसमें हटावा। मैं आज से 20-25 साल पहले आया हूँ कि हमें पता था लेप्रोसी अस्पताल है मंगो पीर टाउन में और कुछ भी नहीं है। यहाँ आया तो होश उड़ गए, देहात है, इंसान है, सांस लेने वाले इंसान है जिनको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब यहाँ सोलर सिस्टम है, पानी की लाइनें डल रही हैं, सेवरेज की लाइनें डल रही हैं, पेवर वाले ब्लॉक की लाइन डल रही है। बिजली का तो तस्वुर नहीं था, लेकिन उन्होंने आके जो पहला टाइम जो हमला किया था कि पोल लगवाए, मीटर लगवाए, उनको इलेक्ट्रिसिटी दी। अब बिजली की लोड शेडिंग है, नासिर शाह को पकड़ के सोलर सिस्टम ले आए और मेरा ख्याल है 4 से 6 तकरीब हो चुकी है और मजीद अभी जारी रहेगी। तो चेयरमैन मंगो पीर टाउन और आरिफ राना से मिलवाने का मकसद यही था कि मंगो पीर टाउन जो झाड़ियों और गर्द गुबार में लिपटा हुआ था, आज यकीनी तौर पर शहर के अंदर तस्लीम किया जाता है कि मंगो पीर टाउन कोई है और इसके लोग भी हैं और इसके बासियों को सहूलत देने वाले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के जियाले, चाहे वो हमारे हाजी नवाज बरोई हो या आरिफ राना हो, पीछे नहीं हट रहे। हमारी जियालियाँ भी पीछे नहीं हट रही जो टाउन काउंसिल के मेंबरान हैं। आदाब। कमिश्नर कराची हसन नकवी का औरंगी टाउन मोमिनाबाद टाउन का दौरा। डिस्पेंसरी में तिब्बी आलात मौजूद लेकिन डॉक्टर तैनात नहीं। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया की ब्रीफिंग। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने आज डिप्टी कमिश्नर गरबी अली जुल्फ़िकार मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी मोमिनाबाद इमरान उल हक के हमरा ज़िला गरबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। जहां औरंगी टाउन पहुंचे तो चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया और म्युनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद ने उनका इस्तकबाल किया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी और इनकी टीम को औरंगी टाउन बनारस चौक पर खुशामदीद जहां कहा था, वहीं टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया और म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद ने कमिश्नर कराची को यकीनी तौर पर औरंगी टाउन की डिस्पेंसरी, मैटरनिटी होम और सेक्टर 11.5 औरंगी का तफसीली तौर पर दौरा करवाया। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने डिस्पेंसरी और मैटरनिटी होम के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। डिस्पेंसरी और मैटरनिटी होम के दौरे के दौरान टाउन चेयरमैन हाजी जमील जिया और म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि औरंगी डिस्पेंसरी और मैटरनिटी होम 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, अस्पताल में जदीद मशीनरी मौजूद है, एक्सरे मशीन, लैब, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, ब्लड टेस्ट की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा तिब्बी आलात तवील अरसे से इस्तेमाल ना होने की वजह से गैर फाल हैं, जो कि मुनासिब देखभाल और दुरुस्तगी के बाद इस्तेमाल में लाई जा सकते हैं। डॉक्टर ना होने की वजह से तवील अरसे से ये डिस्पेंसरी और मैटरनिटी होम गैर फाल है, जिसकी वजह से इलाके के लाखों लोगों को सेहतमंद की यानी तिब्बी सहूलतों की फराहमी जो मुफ्त और आसान सहूलियत थी वो उससे महरूम है। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी से दरख्वास्त की कि अगर डॉक्टर्स की तैनाती हो जाए तो टाउन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन औरंगी टाउन इन डॉक्टर्स की तनख्वाह अदा करने के लिए तैयार है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि वो सिंध गवर्नमेंट से डॉक्टर की तैनाती की दरख्वास्त करेंगे ताकि ये मैटरनिटी होम और डिस्पेंसरी फाल हो सके, जहां तमाम तर आलात तो मौजूद है लेकिन डॉक्टर्स ना होने के बाद यकीनी तौर पर ये सिर्फ एक इमारत रह गई है और मशीनरियाँ गैर फाल होती जा रही हैं, जिससे उसके ख़राब होने का अंदेशा है। इलाके के गरीब आवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात मैसर आ सकेगी, इसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
बाद अज़ा कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 का दौरा किया। हाजी जमील जिया ने और कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी को बताया कि 2008 में इलाके के नौजवानों के लिए इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर शुरू हुई थी और महकमा वर्क्स ने तामीर के बाद इस स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी के हवाले करना था, मगर तकरीबन 17 साल के बाद भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से यहाँ की नौजवान नस्ल खेल कूद की सहूलियत से महरूम है। हाजी जमील जिया चेयरमैन औरंगी टाउन ने कहा कि औरंगी टाउन के दीगर मसाइल के बारे में भी आपको तफसीली तौर पर आगाह करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मसाइल के अंबार हैं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने तमाम मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। दौरान यानी जो दौरा किया उन्होंने मोमनाबाद टाउन के खुसूसी नुमाइंदे ज़ैन अली शाह भी मौजूद थे। बाद अज़ा चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया ने अपने दफ्तर में म्युनिसिपल कमिश्नर आगा फहद और ज़ैन अली शाह के हमरा कुछ बात की, यानी अपने ख्यालात का इज़हार किया। वो सुनवाते हैं, सुनिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी इस वक्त टीएमसी औरंगी में अपने ऑफिस में बैठा हूँ। मैं टाउन चेयरमैन मोहम्मद जमील ज़िया, मेरे एमसी आगा फहद साहब टीएमसी औरंगी और मेरे यहाँ पर जो है टीएमसी मोमिनाबाद के भी जो है हमारे जैन साहब जो है यहाँ पे बैठे हैं और हमारे तमाम टीएमसी के अफसरान यहाँ पर मौजूद है। अभी हम आज 4 अक्टूबर 2025 को कमिश्नर कराची और डीसी वेस्ट के साथ जो है जो विज़िट रखा था बनारस का, और उसके बाद जो है रखा था हमारे मैटरनिटी होम सेक्टर 11.5 का और हमारे कम्प्लेक्स का। तो अभी कमिश्नर कराची साहब ने जो है सुबह से जो है हमारे साथ जो है तमाम जगह का बनारस चौक का भी उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने साफ हिदायत किया है कि हमें जो है ये जितनी इंप्रूवमेंट है ये क्लियर चाहिए। बनारस चौक पे जो जितने पथारे लगे हुए वो भी जो है 15 दिन के अंदर क्लियर चाहिए, और उसके अलावा जो भी यहाँ के मसले मसाइल है वो जो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने जो है अपना यकीन दहानी दिलवाया है कि हम जो हैं आप लोगों के साथ मिलकर डीसी साहब को भी कहा है, जिस तरह हमारा टीएमसी औरंगी का मैटरनिटी होम है सेक्टर 11.5 में, वहाँ के जो हालात ज़ार हैं, यानी कि समझ जाएं आप कि हमारा गरीब और पसमानदा इलाका है और वहाँ जो मैटरनिटी होम जो है वो तकरीबन जो है 6-7 सालों से जो है वो बंद है और वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। लेकिन उन्होंने जो है यकीन दहानी करवाया है कमिश्नर कराची ने कि हम इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर का अरेंजमेंट करते हैं और औरंगी के आवाम के लिए जो ये एक बेहतर जो है सहूलत यहाँ से जो है मुहैया होगा। उसमें टीएमसी औरंगी की तरफ से मैंने उन्हें यकीन दहानी कराया कि एज ए डॉक्टर की जो तनख्वाह होगी वो टीएमसी औरंगी की तरफ से जो है हम अदा करेंगे। तो मैं अपने औरंगी टाउन के आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट और हम जो कमिश्नर कराची हैं, डीसी हैं और टाउन के जो हम टाउन चेयरमैन, हमारे एमसी, हमारे अफसरान आवाम के लिए जो है रात दिन लगे हुए इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी लाना चाह रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है अपने आवाम के लिए काम करना चाहती है। मैं एज ए अवामी नुमाइंदा टाउन चेयरमैन हम चाहते हैं कि औरंगी के पसमानदा इलाके में जो है हमारे जो लोगों की मजबूरियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनकी तकालीफ जो है हम दूर करें। तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो काम हम धीरे धीरे कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 30-35 साल से जिस तरह हमारे औरंगी का जो पसमानदा इलाका है और इसमें जो है हमारे जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन, इसमें जो है यानी कि हमारे सेवरेज का, वाटर का बहुत बुरा हाल है, रोडों का बहुत बुरा हाल है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम जो है जो भी हमारे अंदर सख्त होगा, हमारे से जो भी हो सकेगा, हम जो इंशाअल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर अपने जो है डीसी के साथ, कमिश्नर कराची साहब के साथ मिलकर, मेयर कराची साहब के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला औरंगी को एक मॉडल टाउन बनाएंगे। यकीनी तौर पर कमिश्नर कराची का दौरा सूदमंद साबित हो सकता है अगर गैर फाल डिस्पेंसरी मैटरनिटी होम, जिसमें यकीनी तौर पर मशीनरियाँ यानी तमाम तिब्बी आलात मौजूद हैं, लेकिन डॉक्टर सालों से ना होने की वजह से यकीनी तौर पर लोगों को तिब्बी सहूलतों की फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही। ये एक अफसोसनाक अमर है। लेकिन हाजी जमील जिया, चेयरमैन औरंगी टाउन, ने आज यकीनी तौर पर कमिश्नर कराची के सामने औरंगी टाउन का खुलकर मुकदमा भी लड़ लिया। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यू कराची टाउन में 600 गलियों की फ्योर ब्लॉक से तामीर का आगाज कर दिया है। इलाका मकीन का जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। वाइस चेयरमैन शुएब बिन जहीर का दौरा।
गुज़िश्ता रोज़ हमने बताया था कि न्यू कराची टाउन में जमात इस्लामी के अमीर कराची मुनीब जफर ने बाकायदा 600 गलियों को जो पेवर वाली बनानी थी न्यू कराची टाउन की हदूद में, उसकी तकरीब में शिरकत की थी और फिर तख्ते की निकाब कुशाई करके यकीनी तौर पर संगे बुनियाद भी रख दिया था। और उसके बाद हमने कहा यकीनी तौर पर काम का भी आगाज़ होगा, क्योंकि चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ न्यू कराची टाउन ने कहा था कि हम अगले दिन से काम का आगाज़ करेंगे। आज हम पहुंचे न्यू कराची टाउन, तो जहां वाइस चेयरमैन शोएब बिन ज़हीर, महकमा बीएनआर के फैसल सग़ीर और दीगर यहाँ मौजूद थे। और 11J के अंदर जहां मुख्तलिफ गलियों में ट्रैक्टर की जो चलाई होती है, यानी ट्रैक्टर चलाया जाता है गली को सीधा करने के लिए, उसका काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका था, तकरीबन 4 से 6 गलियों का। और हम पहुंचे थे 5 साढ़े 5 बजे, तो ट्रैक्टर जा चुका था। लेकिन बहरहाल चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ की वाज़ेह जो हिदायत थी और जो उन्होंने दावा किया था, उसके बाद शोएब बिन ज़हीर ने आज हमें बताया कि यहाँ पर कामों को शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये फेज़ वाइज होता है, यानी कि अभी ट्रैक्टर चला है, फिर उसके बाद यहाँ लोगों की पानी सीवरेज की लाइनें होती हैं, उनको हमने टाइम दे दिया है 2-3 दिन का। लेकिन वो कह रहे हैं थोड़ा ज़्यादा दो, तो हमने कहा ठीक है, आप 3-4 दिन 5 दिन में ये काम मुकम्मल कर लें, इसलिए कि उसके बाद फिर हम यहाँ पेवर लगाने का काम शुरू करेंगे। इससे आपको ही फ़ायदा होगा और यकीनी तौर पर आपके गली महल्ले साफ़ होंगे, साफ़ सुथरा माहौल होगा, धूल मट्टी से आप बचेंगे और बारिश में भी आपको यकीनन सहूलतें मिलेंगी। यहाँ पर यकीनी तौर पर पाइप निकले हुए थे, यकीनी तौर पर जो ट्रैक्टर चलने के बाद लाइन कट गई थी, अब उनको मोहलत दे दी गई है 4-5 दिन की, कि वो 4-5 दिनों में अपनी लाइनों के कनेक्शन दोबारा बहाल कर लें, ताकि उसके बाद बाकायदा यहाँ पर पेवर वाली गलियों के तामीर का काम शुरू हो जाए। इस मौके पर यकीनी तौर पर लोग भी मुतमईन थे, लेकिन लोग बता के आ रहे हैं, ज़रा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। बहुत अच्छा ये काम बहुत हो रहा है और 25 साल के बाद ये पहली बार हो रहा है जमात इस्लामी की तरफ से, जिसकी तरफ से भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम तो बहुत परेशान थे, आप यकीन करें, पहली बार इतनी तेज़ी से काम हो रहा है। हमें उम्मीद है कि इसी तरह से पानी का मसला भी हल हो जाए और गटर लाइन का मसला भी हल हो जाए, तो ये इलाके के 4 चांद लग जाएंगे। यहाँ पर सुबह के टाइम 7-7:30 बजे का टाइम था। जब हमने बाहर निकल के देखा, माशाल्लाह से हमने ट्रक को देखा यहाँ खड़ा हुआ, हमने मालूमात करी तो जमात इस्लामी का झंडा लगा हुआ था। हमें तो बड़ी खुशी हुई कि अब हमें कुछ नज़र आ रहा है कि काम होगा इंशाल्लाह। वो गली में जब पहली फुर्सत में 9-9:30 बजे के अंदर अंदर ट्रैक्टर चलना शुरू हुआ, फिर रोड को डलना, उसके बाद फिर माशाल्लाह हमारी तो खुशी की और इंतहा नहीं रही। अब इंशाल्लाह जब ये रोड डल जाएगा, एक आप जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे काउंसलर साहब सुबह से लगे हुए थे हमारे साथ, वो भी बेचारे काउंसलर साहब, तो उन्होंने अपनी कस्टडी के अंदर ये सारा काम स्टम करवाया, तकरीबन 5-6 बज गए इंशाल्लाह। अब उम्मीद नज़र आ रही है कि जमात इस्लामी इंशाल्लाह अब काम करवा रही है इंशाल्लाह, और हमारा पूरा समझो ख्वाब पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। सुना आपने, इलाके के लोग मुतमईन हैं, तो ये बड़ी बात है। ताहम इस मौके पर वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन शोएब बिन ज़हीर ने क्या बताया, मेट्रो वन को ये सुनिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो न्यू कराची टाउन का एक देरीना ख्वाब था कि गुज़िश्ता जो मैं समझता हूँ कि 25 साल के बाद जो है यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हमने यहाँ पर दिया है अहले महल्ला को और न्यू कराची टाउन के बासियों को 600 गलियों की सूरत के अंदर, और खूबसूरत महल्ले खूबसूरत टाउन 600 गलियों की तामीर जो है ये हमारा स्लोगन है। पिछले दिनों जो है मुनीब जफर साहब अमीर जमात इस्लामी कराची ने टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ जो है संग बुनियाद रखा था इसका, और कई यूसीओं के अंदर काम शुरू हो चुका है। इसका जो पेवर का जो काम है, आपको अंदाज़ा ही होगा कि सबसे पहले मरहले के अंदर ट्रैक्टर ब्लेड लगता है, ट्रैक्टर ब्लेड के बाद रोड को लेवल किया जाता है, रोड को लेवल करने के बाद और गेड़ा, और उसके बाद फिर दीगर इसका मरहला होता है। तो ट्रैक्टर ब्लेड जो है वो लग चुका है यहाँ पे, आज यहाँ भी ट्रैक्टर ब्लेड जो है वो लगा था, और अब जो है कल मजीद जो है दोबारा से ट्रैक्टर ब्लेड आएगा और अपना काम करेगा। इसी के साथ यहाँ पे जो है वो ये सेक्टर 11J और UC हमारी 11 है। इसमें 2-2 1-1 इंच के ऊपर लोगों ने पानी की लाइनें डाली हुई हैं, तो उस काम के दौरान जो है कुछ पानी की लाइनें टूट गई थी, तो आज हमने इनको टाइम दिया है कि जो है इसको आप सुबह तक इस लाइनों को दुरुस्त कर लें, ताकि जब दोबारा से जो हम अपने सुबह काम का आगाज़ कर सकें। इंशाल्लाह ये 90 दिन का हमने टाइम रखा कि 90 दिन के अंदर इंशाल्लाह तमाम जो है यूसीस के अंदर जहाँ जहाँ भी गैस की रोड कटिंग हुई थी वहाँ पे जो हम पेवर का काम अपना कंप्लीट कर लेंगे। सुना आपने, ये थे वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन, जो कि अपने एक्शन PNDR फैसल सग़ीर के हमरा और दीगर के हमरा यकीनी तौर पर आज भी कामों का मुआयना कर रहे थे, ताकि लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और जो दावा किया था वो दुरुस्त साबित कर सके। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। चेयरमैन मंगोपीर टाउन नवाज बुरही और वाइस चेयरमैन आरिफ राना का शाहरा की तामीर का मुआयना, काम पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया।
चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने आज अपने वाइस चेयरमैन मंगो पीर टाउन आरिफ राना के हमरा यकीनी तौर पर बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के जारी कामों का आज दौरा किया और सिलसिले में उन्होंने जो वफाकी हुकूमत की तरफ से एक बाकायदा जो दरख्वास्त की गई थी चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही की तरफ से, और इसमें रुकन कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी का भी बड़ा अहम किरदार था, तो वो एक सड़क बनाने का काम जरूर हुआ था लेकिन वो बारिश के बाद बह गई थी, जिस पर यकीनी तौर पर चेयरमैन मंगो पीर टाउन ने वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा था कि हमारी सड़क तबाह हो गई है और वो मुतमईन नहीं है। तहम आज एक बार फिर जहाँ कामों का आगाज़ हो चुका है, वहीं चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही, वाइस चेयरमैन मंगो पीर टाउन आरिफ राना ने आज अपने दीगर कुलीग के हमरा इसका मुआयना किया और यकीनी तौर पर काम चल रहा था और उसका वो मुआयना कर रहे थे क्योंकि वो मुतमईन भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उनका कहना था कि हमें अफसोस है कि जो काम हम समझ रहे थे कि मियारी होगा वो उस तरीके से नहीं हो रहा है। अब अभी भी उन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। तहम यहाँ पर सड़क शाहरा की तामीर का काम तेज़ी से जारी रखा हुआ है और उसको यकीनी तौर पर मुकम्मल करने की कोशिश भी की जा रही हो, लेकिन अगर चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही मुतमईन नहीं है, इसका वफाकी हुकूमत को ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। तहम यहाँ पर एक बरसाती नाला भी है और वो ऐसा नाला है कि रहे नाम अल्लाह का। जब आप वफाकी हुकूमत सड़क बना रही है तो इस नाले की तामीर को भी यकीनी बना लेती, क्योंकि ये नाला ऐसा है कि इसमें ना तो एक्सीवेटर चल सकता है ना ग्रैब मशीन चल सकती है। यहाँ नाला देख रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही अदम एतमाद का इजहार करते हैं, लेकिन हम आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने मेट्रो वन को क्या बताया। सुनिए। नाला जो मैंने आपको दिखाया था वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये इस वक्त ये जो काम आप देख रहे हैं ये SIDCL डिपार्टमेंट है जो वफाक इस पर काम कर रही है, लेकिन इस काम से हम मुतमईन नहीं थे। हमने MNA डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा से हमने रब्ता किया और उन्होंने जो है यहाँ से इस्लामाबाद हम गए, PM साहब को लेटर भी लिखा हमने, MNA साहिबा के थ्रू कवरिंग लेटर लगा कर उन्होंने जमा कराया। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैंने ये बात चेयरमैन साहब को भी कहा है कि हमने जब से होश संभाला है दो चीज़ें जो है ना हमने आज़ाद नहीं देखे, बनते हुए नहीं देखे। एक कश्मीर की आज़ादी, ना कश्मीर का मसला हल हुआ है ना मंगो पीर रोड का आज तक मसला हल हुआ है। आज हम मंगो पीर रोड पे खड़े हैं, SIDCL वाले काम कर रहे हैं, इस काम से हम मुतमईन नहीं है। नाले की आप हालत देखें, अब ये नाला ये बना के किसी की भी हैंड ओवर करेंगे, KMC की या TMC की या सिंध गवर्नमेंट की, ये सफाई कैसे होगी? नंबर एक, इसके ड्रेनेज कहाँ है? ये पानी आखिर का कहाँ जाएगा? अब पिछले बारिशों में ये रोड बना हुआ था, जब बारिशें हुई तो यहाँ से लोगों का आना जाना बंद हो गया था। फिर हमने मुतबादिल रास्ता बनाया, जो आप दिखा सकते हैं, ये गाड़ियाँ जो जा रही हैं ऊपर से, ये मुतबादिल रास्ता हमने अपनी मदद आप बनाया, TMC से बनाया, तो यहाँ से लोग फिर डाइवर्ट होकर जा रहे थे, कम से कम लोगों को आने जाने की रास्ता मिला है। यहाँ से बंदा सुबह निकलता है वाइट कपड़ा पहन के मोटरसाइकिल पे या बाइक पे मंगो पीर तक, चुंगी से वापस जो है अपने घर चला जाता है तो बंदे का ओलिया चेंज हो जाता है। तो ये एक हमारा देरीन मसला है। 12 हम इस पे जो है ना कोशिश कर रहे हैं। हमने CM साहब को भी लिखा है, हमने यहाँ से विज़िट कराने का प्रोग्राम है हमारा, कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को भी हमने कहा है, विज़िट भी कराया है। असल बात ये है कि यहाँ से आते हैं लोड गाड़ियाँ, सिंध और बलूचिस्तान का ये एक वाहिद रास्ता है जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाता है मंगो पीर से। हमने यूनिवर्सिटी का भी रोड ये, फिर हमारे गोट गाँव देहात की बहुत सारी बड़ी सबसे बड़ी जो है ना हमारा बड़ा वार्ड भी यही है, जाम चक्रो वगैरह सब इस पे आते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह का काम होना चाहिए, जिस तरह की यहाँ से ओवरलोड गाड़ियाँ जाती हैं, नीचे सोलिंग होना चाहिए, पत्थर होना चाहिए, रोड़ी होनी चाहिए, उसको मजबूत करके जो है इस रोड को बनाना चाहिए। इसको इस तरह बना रहे हैं कि एक आम सोसाइटी के जैसे रोड हो, जिसके अंदर सिर्फ सोसाइटी की गाड़ियाँ छोटी कारें जाती हैं, तो ये तो कभी नहीं टिकेगा, टिकने वाला ही नहीं है। जबकि वाइस चेयरमैन मंगो पीर टाउन आरिफ राना क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। इसी के लिए तो 12 बोल भी चुके हैं कि इसको एक तो इन्होंने ऊपर से पैक कर दिया है और दूसरा इसके अंदर ना एक्सीवेटर का जा सकती है, और अभी उसको ड्रामा करने के लिए इन्होंने यहाँ पे वेंचिंग एक मशीन लगाई है जो कि सेवरेज की लाइन को साफ़ करने के लिए होती है, और इसको खुला नाला साफ़ करने की कोशिश किया जा रहा है SIDCL की तरफ से। चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोही यकीनी तौर पर दिन रात लोगों को सहूलियात की फराहमी में मशगूल हैं, लेकिन आज वो मुतमईन नहीं है। इनको मुतमईन करना ज़रूरी है। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लियारी टाउन में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए यूनियन काउंसिल 1 से 3 का जमीनी सर्वे मुकम्मल कर लिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हमाद एंडी खान। लियारी टाउन में लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के सिलसिले में सर्वे का जो ज़मीनी सर्वे का काम शुरू किया गया था, अब वो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है।
गामजन है और यकीनी तौर पर म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद अली खान की कोशिश है कि वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी के पेशन के मुताबिक और गुज़िश्ता इजलास में दी गई हिदायतों पर काम को यानी ज़मीनी सर्वे को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाना चाहते हैं और इस सिलसिले में वो यकीनी तौर पर मुख्तलिफ यूनिट काउंसिल्स के दौरे करते चले आ रहे हैं, जहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ़हीम चाचड़ और उसके साथ साथ मुंतखब नुमाइंदे इलाकाई और उसके साथ साथ नेक्स्ट पार्क की जो कंसल्टेंट है वो उनकी मौजूदगी को यकीनी बनाते हैं। आज भी उन्होंने यूनियन काउंसिल 1, 2 और 3 का जामे सर्वे किया। म्युनिसिपल कमिश्नर हम्माद अली खान लियारी टाउन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ़हीम अहमद चाचड़ की ज़ेर निगरानी जहाँ मुंतखब नुमाइंदगान इनायत मरवत, शकील अहमद, अब्दुल रहमान शाह, अब्दुल कादिर लोहा वाड़ा, अनीस सत्तार, सईद जदों और फजल बिलोच के अलावा म्युनिसिपल यानी बल्दियाती अफसरान जहाँ मौजूद थे, वहीं उन्होंने आज यूनियन काउंसिल 1, 2, 3 का भी ज़मीनी सर्वे तकरीबन मुकम्मल कर लिया, जिसमें गली, महल्ले, शाहराएँ, पार्क और उसके साथ साथ सेवरेज और पानी के जो मसाइल थे उसको तफसीली तौर पर आज सर्वे में शामिल किया गया था और तमाम चीज़ों को मॉनिटर जहाँ कर रहे हैं या उस हक़ाइक़ के ऊपर मबनी रिपोर्ट बना रहे हैं, वहीं पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसको बगौर मुआयना कर रहे हैं, जबकि नेक्स्ट पार्क की टीम बड़ी बारीकी के साथ इन चीज़ों को जहां देख रही है, कंसल्टेंट वो हैं, वहीं म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद अली खान उनको तमाम तफसीलात बता रहे हैं, वैसे ही जैसे ये किसी वकील को या दाई को हर चीज़ बताना चाहिए ताकि उसके बाद इलाज मुमकिन हो सके और पायदार इलाज। यही वजह है कि म्युनिसिपल कमिश्नर हम्माद अली खान चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की इजलास के बाद जो दी गई हिदायतें थे उस पर जो काम महीनों में करना चाहिए था वो दिनों में कर रहे हैं। जी हाँ, वक्त ज़ाया नहीं कर रहे, दिनों में कर रहे हैं और हम आपको मुसलसल बता रहे हैं कि मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के वो ज़मीनी सर्वे को मुकम्मल करवाना चाहते हैं ताकि प्रोजेक्ट तेज़ी से अमली तौर पर ग्राउंड पर मौजूद हो और नेक्स्ट पार्क जो कंसल्टेंट है उसको तमाम तर चीज़ें और हक़ाइक़ बता दिए जाते हैं ताकि कोई हैकी पैकी ना रहे। यकीनन म्युनिसिपल कमिश्नर लियारी टाउन हम्माद अली खान लियारियान लियारी टाउन की किस्मत बदलना चाहते हैं और लियारी में एक नया लियारी को जी हाँ एक नया शहर की सूरत में जो बिलावल भुट्टो सरदारी का विजन है उसको हकीकत का रूप देना चाहते हैं। अजीज़ आरिफ, मेट्रो न्यूज़ कराची। गुलबर्ग टाउन में प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट की शानदार कारकर्दगी, 3 माह में 6 करोड़ रुपए की रिकवरी। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी इदारे की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और टाउन में तरक्याती और अवामी कामों का बराह रास्त इंहिसार टैक्स रिकवरी पर होता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से 3 माह के दौरान 6 करोड़ रुपए की शानदार रिकवरी के एजाज में मुनक़दा ज़ोहराने से खिताब करते हुए किया। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि महकमा प्रॉपर्टी टैक्स के अफसरान और अमले ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और बेहतर हिकमत अमली से ये कामयाबी हासिल की है जो न सिर्फ टाउन इंतजामिया बल्कि आवाम के लिए भी एक खुश आइंद पेशरफ्त है। इस रिकवरी से टाउन में तरक्याती मनसूबों, सड़कों की तामीर, मरम्मत, सेवरेज के मसाइल हल और सफाई सुथराई के कामों को मजीद तेज किया जाएगा। उन्होंने इस अज़म का भी इजहार किया कि आइंदा 6 माह में प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी को 2 गुना करने का हदफ रखा जाएगा और इस मकसद के लिए टाउन के इंतजामिया मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। नुसरतुल्लाह ने अमले को खराज तहसीन पेश करते हुए ऐलान किया कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान और मुलाजमीन को खसूसी इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे ताकि इनकी हौसला अफजाई और दीगर महकमों के लिए भी एक मिसाल की कायम की जा सके। इस मौके पर साबिका टाउन नाजिम फारूक नेमतुल्लाह, इंचार्ज प्रॉपर्टी टैक्स असलम कायम खानी और महकमा टैक्स का पूरा अमला भी मौजूद था, जिन्हें उनकी बेहतरीन कारकर्दगी पर मुबारकबाद पेश की गई। कराची के जिला वेस्ट में बल्दियाती सहूलियात, तरक्याती मनसूबों और अवामी मसाइल का जायजा लेने के लिए कमिश्नर कराची तनवीर हसन नकवी ने डिप्टी कमिश्नर वेस्ट के हमरा मोमिनाबाद टाउन का दौरा किया। कमिश्नर कराची के दौरे के दौरान टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ ऐवान की हिदायत पर सैयद ज़ैन अली शाह ने इनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन, औरंगी म्यूनसिपल कमिश्नर और मुतालिका अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान कमिश्नर कराची ने डिस्पेंसरियों, खेल के मैदानों, पार्कों और सड़कों का मुआयना किया और सफाई सुथराई के निज़ाम का जायजा लिया। इस मौके पर सैयद ज़ैन अली शाह ने कमिश्नर कराची को मोमिनाबाद टाउन के तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल से आगाह किया। कमिश्नर कराची ने इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना अव्वलीन
तरजीह है। उन्होंने हिदायत की कि तरक्याती अमल मजीद तेज किया जाए ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम की जा सकें। बल्दियाती यूनियन का इजलास पेंशनर्स के हकूक के लिए मंगल को एहतजाज का ऐलान कर दिया। इजलास में मजीद अहम फैसले भी कर लिए गए। वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस का एक अहम तंजीमी इजलास सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह की ज़ेर सदारत बल्दिया उस्मा कराची के वर्कशॉप में हुआ। इजलास में शामिल यूनियन सज्जन यूनियन, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन, पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन मूवमेंट, पीपल्स यूनिटी, पेंशनर अलाउंस के कायदीन अशरफ ऐवान, गुल इस्लाम, हबीबुर रहमान ऐवान और राजा आसिम शहजाद, मंजूर तनोली, अब्बास अहमद, मुनीर अहमद, अमीन आगरिया, रेहान काजी, इलियास मिठो, अमजद गौरी, सिद्दीक शेर, शब्बीर, निसार सवाती, मोहम्मद नज़ीर, अब्दुल वसाम, मुजम्मिल शाह, नदीम सरदार और दीगर ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओज़ेडी ग्रांट में इजाफा, ऑनलाइन ट्रेजरी से तनख्वाहों की अदायगी, टाउन सर के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के लिए फंड्स के उजरा और बल्दिया उस्मा कराची के 10,000 पेंशनर्स को वाजिबात की अदायगी के लिए तहरीक शुरू की जा रही है। इस मौके पर सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की जद्दोजहद पर कायदीन को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया और लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन के मुतालबात के सिलसिले में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को खत लिखकर मसाइल हल करने की दरख्वास्त की जाएगी, जबकि मंगल को लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी के दफ्तर के सामने एहतजाज भी किया जाएगा। इस बात का फैसला इजलास में किया गया। सैयद जुल्फ़िकार शाह और दीगर कायदीन का कहना था कि रिटायर्ड मुलाजमीन फाकरकशी का शिकार हो चुके हैं और कब्रों में मुंतकिल होते जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत की यानी सिंध हुकूमत के महकमा फाइनेंस और बल्दिया उस्मा कराची के दरमियान जहाँ पिंग पोंग खेला जा रहा है, उसकी वजह से रिटायर्ड मुलाजमीन खुसूसन पेंशनर वो अजियत का शिकार हैं और फाकरकशी का शिकार हो चुके हैं, जबकि उनको रिटायरमेंट के बाद यकीनन मुख्तलिफ अमराज में वो मुब्तला होते हैं, कई बीमारियां लगती हैं, लेकिन इस बात का दर्द किसी को भी नहीं है कि वो एक तो चूल्हे बंद हो चुके हैं और अद्वियात की महंगी अद्वियात की खरीदारी उनके लिए नागुज़ीर हो चुकी है। यूनियन रहनुमाओं ने कहा कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और मेहनत कशों के जायज़ हकूक़ और उसके मफादात का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने वाज़ेह तौर पर अब जब ऐलान कर दिया है कि अब मंगल को लोकल गवर्नमेंट सेक्रेटरी के दफ्तर के सामने एक एहतजाज किया जाएगा ताकि एक तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती मुलाजमीन की तरफ देखें, वहीं महकमा फाइनेंस भी इस तरफ देखे कि पेंशनर कब्रों में जा रहे हैं, इंतकाल होता जा रहा है, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही और ये हुकूमती सतह पर उनको की तरफ गामजद किया हुआ है। अजीज़ आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। खबरों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।